Uh, Today the topic is about no confidence motion. Okay, so union government faces a no confidence motion in the monsoon session. So government is facing this. Okay, so no confidence motion होता क्या है? It is a legislative resolution introduced in the Lok Sabha. It always introduced in the Lok Sabha. It is a resolution that allow the opposition to challenge the government majority. तो इससे क्या होता है? opposition को power मिल जाती है. Opposition get power to challenge the government. Okay. So if a no confidence motion अगर पास होता है तो government of day will have to resign. So all government has to resign and constitution article कौन सा है? 75 का 3. This is providing us the council of ministers is collective responsible to the Lok Sabha. At state level, Article 164 and 2 provides that Council of Ministers shall be collective responsible to the state legislature. Rule 198 that was providing rule of procedure and the Council of Business of the Lok Sabha, and that is Rule 198. It is providing about the Council of Business provision regarding the motion of no confidence. So ground क्या है? Need not set out any ground. कोई भी ground नहीं बताना होता है. Repeat motion. After a no confidence motion has been discussed and neglected by the House, another confidence motion cannot be moved. So House express its want of confidence in the Council of Ministers. Speaker examine करेगा. The no confidence motion is in order. The member who has tabled the notice asked for leave of the House, and Speaker then call upon the member who are in the favor of the leave being granted. तो स्पीकर का जो होता है डिसीजन फाइनल होता है इसमें. ओके, एंड देन इफ़ नॉट लेस देन 50, इसमें 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं जो कि स्पीकर डिक्लेयर करेगा. आफ्टर द 50 मेंबर्स आर डिक्लेयरिंग, देन स्पीकर विल डिक्लेयर दैट लीव इज़ ग्रांटेड बाय द हाउस एंड द मोशन इज़ देन टेकन अप द डिस्कशन विद इन 10 डेज. यहाँ पे 10 डेज़ की एक सीलिंग होती है. इन दैट 10 डेज डेट ऑफ द ग्रांट लीव. नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. प्रिविलेजेस क्या होती हैं? सो प्रिविलेजेस क्या होती है? मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस मिली होती है. सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेट आउट ए 7 जज बेंच. दिस इज़ अ 7 जज बेंच एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ PV नरसिम्हा राव केस. इट इज़ PV नरसिम्हा राव case. Okay. In this case, PV Narasimha Rao judgment came into the 1993. That was the Jharkhand Mukti Morcha bribery case. Name is Jharkhand Mukti Morcha case. Okay, that was the Narasimha Rao case. So it upheld the legal immunity granted to the legislative against the criminal proceeding. तो बहुत सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें कुछ लीगल इम्यूनिटीज़ मिली होती है. देयर आर सम इम्यूनिटीज़ इज़ granted to the legislature, and these immunities are provided under the article 105 and 194 of the constitution. and यहाँ पर कुछ prosecutions होते हैं like the bribery or any speech of the vote. So पार्लियामेंट प्रिविलेजेस में क्या होता है? तो यहाँ पे नरसिम्हा राव केस है जिसमें बताया गया इन दैट दे टोल्ड अबाउट दैट बेडरोक ऑफ द नरसिम्हा राव केस. द झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन बोथ. So both cases are there. So the legal immunity is granted to the legislature against the criminal prosecution on bribery charges. So this was under Article 105(2) and 194(2). Legal immunities where the legislature are granted the protection against the civil and criminal liabilities. If an individual or authority undermine a parliamentary privileges of the member, it is called a breach of privileges. अगर कोई member इस बात को नहीं मान रहा है, some members are there who are not following the privileges, then he will be go into the breach of the privileges. Okay, so this is Parliament till now has not made any special law codify this, but now Parliament is the sole authority to ascertain if there has been breach of contempt. So a member of the House can raise the question involve a breach of privileges. तो यहाँ पे behind the parliamentary privileges, first is ensure the attendance of the session. Second is ensure the freedom of the expression. So first is attendance complete होनी चाहिए. Second is freedom of the
फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब फ्री स्पीच प्रोवाइड करनी है उनको, ठीक है। थर्ड इज मेंटेन द अथॉरिटी डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेशन, सो अथॉरिटी एंड द डिग्निटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड फोर्थ, कैरी आउट द फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिवली, सो इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स। So some privileges are provided behalf of these issues. First is 105, Parliament and its member and its committee, इनको पावर और प्रिविलेजेस दिए गए आर्टिकल 105 में। फिर है आर्टिकल 194, पावर प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन एंड देयर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। 105(2), नो पर्सन शेल बी लाइबर ऑफ द पब्लिकेशंस, कोई भी पब्लिकेशन या कोई भी रिपोर्ट्स नहीं दी जाएगी अथॉरिटी को। नेक्स्ट इज 194 लेजिस्लेशन, फ्रीडम ऑफ द स्पीच, दैट वाज 105, नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट फॉर एनीथिंग of the parliament and subject to the provision of the constitution, that is article 121, restrict a member from discussion of the judges and rules and procedure of the parliament। तो कोई भी मेंबर जो होगा वो किसी जजेस के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्शन कर रखा है 121 में। अंडर द आर्टिकल 118 में क्या कहा गया है कि इरेगुलर अगर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो उसके बारे में बताया गया है। एंड दिस इज़ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। सो आपको यहाँ पर कौन से आर्टिकल्स ध्यान रखते हैं, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 122, लाइक रेस्ट्रिक्ट द कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। तो कोर्ट कभी भी आपकी इंक्वायरी में मतलब नहीं करेंगे जब भी आपकी प्रोसीडिंग चल रही होगी, ओके। एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर 121 एंड 122। तो यहाँ पे अलीज इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर के बारे में कोई भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल फ्रीडम ऑफ द फ्रॉम अरेस्ट, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो 1908 में आएगा। एनी सिविल केस ऑफ 40 डेज, मतलब कोई भी सिविल केस होगा तो 40 दिन के अंदर अंदर आफ्टर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस एंड आल्सो ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस। हावेवर MP डजंट एन्जॉय एनी सच इम्यूनिटी इन द क्रिमिनल केसेस, लेकिन क्रिमिनल केसेस में कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। देयर इज़ नो इम्यूनिटी इन द क्रिमिनल केसेस, बट इन सिविल केसेस यू हैव प्रोवाइडेड द 14 days बिफोर and after adjournment of the house you can you will never be tortured in that case, okay। and पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो कि दोनों हाउसेस से बनी होती है उसको प्रिविलेजेस कमेटी कहते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा के हैं, ओके। की फंक्शन है इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चन ब्रीच ऑफ द हाउसेस एंड रेफर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिए जाते हैं, ओके। सो राइट टू एक्सक्लूसिव स्ट्रेंजर, मतलब जितने भी स्ट्रेंजर है जिनको आपको एक्सक्लूड करना है, ओके। स्ट्रेंजर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हाउस। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज देयर, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। सी, act or omission which obstruct or has a tendency to be obstruct either house of parliament and performance of the function. So parliament is the sole authority to ascertain the breach of the contempt, and house can be commit an offender to custody. Now there is the MP is found guilty, then suspend from the house, okay। तो जब MP को guilty found करेंगे तो आप उसको suspend कर सकते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का मतलब होता है अगर आप हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग को ब्रीच कर रहे हो, इफ़ यू आर ब्रीचिंग द प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, दैट मीन्स यू आर कम्स इन द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। इन दैट केस MP विल फाउंड द गिल्टी, सो ही विल सस्पेंड फ्रॉम द हाउस, ओके। सो दिस इज सोल अथॉरिटी टू असर्टेन द ब्रीच ऑफ कंटेम्प्ट। सो पार्लियामेंट की सोल अथॉरिटी होती है कि ब्रीच ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर। लोकसभा हैज़ एक्सपेल्ड वन ऑफ इट्स मेंबर अक्यूज ऑफ एक्सेप्टिंग गिफ्ट। अब कोई मेंबर था लोकसभा का, ही वॉज टेकिंग द गिफ्ट्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ओके। सो दैट्स वाई इट इज़ बेस्ड ऑन द एथिक्स कमिटी। एथिक्स कमिटी ने इसको पता किया। सो एथिक्स कमिटी इज़ बेस्ड ऑन द 15 मेंबर्स कमिटी बाय द स्पीकर, और ये नॉमिनेट होती है किससे, स्पीकर इसको नॉमिनेट करता है। शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 year, 1 year तक ये मतलब चलती है। टू एग्जामिन द कंप्लेंट रिटेनिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट, मेक द रिकमेंडेशन एंड फॉर्मुलेट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड सजेस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट। फर्स्ट एथिक कमेटी जो आई थी दैट वाज इन 2000। तो यहाँ पर नॉट मोर देन 15 मेंबर्स होते हैं जो कि स्पीकर इनको 1 साल के टर्म के लिए लेता है। तो लोकसभा ने इसको 2000 में ले आई थी।
और राज्यसभा 1997 में लाई थी। ओके, प्रिविलेजेस कमेटी में 22 मेंबर्स 25 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। सो प्रिविलेजेस कमेटी में 25 होते हैं और वैसे ही इथिक्स कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं। अब ये इन्होंने बताया कि किसी ने गिफ्ट लिया या फिर किसी को ग्रेटिफिकेशन मिला था, दैट्स वाई फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एथिक्स कमेटी एंश्योर द स्मूथ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, मेंटेन द ऑर्डर एंड केसेस फॉर एक्सट्रीम मिसकंडक्ट। अगर बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट हो रहा है इन दैट केस उसकी मेंबरशिप को आप अनफिट घोषित कर लोगे, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द एथिक्स कमेटी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ some rules are also there. First is rule 373. Okay, it empower the presiding officer to order the MP to withdraw during the day of sitting. इसको कहा गया है कि आपको विदड्रॉ करना है, ओके, डे ऑफ सिटिंग में। आर्टिकल सेक्शन 374 सस्पेंड MP, इसमें आपको सस्पेंड कर दोगे MP को, ओके, नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। एंड 374A जो है इसमें स्पीकर का नेम बताएंगे, वो विल बी ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड। तो स्पीकर टू नेम द MP, स्पीकर नाम लेगा एक MP का जिसने कि कोई ऐसा काम किया होगा विच इज़ अगेंस्ट द एथिक्स, सो इन दैट केस ही विल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ओके। एंड नाउ 255 रूल है, चेयरमैन टू डिक्लेयर द मेंबर टू विदड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस। तो इसमें चेयरमैन डिक्लेयर करता है राज्यसभा में कि आपको विदड्रॉ करना है। एंड 300 के अंदर के जो रूल हैं ये सारे लोकसभा के हैं, जबकि 255 जो है राज्यसभा में आता है, 256 भी राज्यसभा में है, सस्पेंड करना मेंबर को। और 374A में राज्यसभा कैन नॉट सस्पेंड इट्स मेंबर विदाउट पासिंग ए मोशन। तो मोशन के थ्रू इसको नहीं सस्पेंड करना होता है, बल्कि कोई ऐसा मतलब may adopt a motion suspending a member that was under in 256 rule, not in 274A. Okay, that is the power is given to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha. Now next one is Article 122 of the Constitution. It is say the parliamentary proceeding including those related to the expulsion can't be questioned by the judiciary through the court have intervened in the some cases. तो आर्टिकल 122 में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स से प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग उनके ऊपर कोई भी जुडिशल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, ओके। राज्यसभा एक राजा रामपाल केस है, इसमें कहा गया था कि प्रोसीडिंग टेंटेड बाय द सब्सटेंशियल इलीगली आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। तो राजा रामपाल केस में कहा गया था कि इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। एंड आफ्टर देन RPA Act 1951 that was lawmaker is disqualified for a period of further 6 years. So lawmakers are disqualified for the 6 year. And 10th schedule of the Constitution provide the disqualification of the defection. So defections are providing in the 10th schedule of the Constitution. And Article 102 and Article 191 is disqualification of the MP and MLA on ground of holding office of profit and unsound mind and insolvent. Okay, so these are the parameters which is we know about that. Now next is एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि अगर कोई मतलब स्पीकर डिसमिस करता है किसी मेंबर को डिफेकेशन करने पर, मतलब ही इज़ चेंजिंग द पार्टी, सो दिस इज़ अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ओके, सो any question regarding the disqualification is arising decided by the presiding officer. So कौन डिसाइड करता है? It is decided by the presiding officer. So disqualification कैसे होगी? If voluntary आपने किसी membership को voluntarily gives up the membership, so voluntarily if giving the membership. Second is if independent member become disqualified join any political party. अगर इसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली हो, नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालीफाइड ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द 6 मंथ, अगर 6 मंथ में उसने कोई पार्टी ज्वाइन की हो, ठीक है। सो लॉ अलाउज ए पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज विथ इनटू द अनदर पार्टी, मतलब अगर 2/3 मेंबर्स ने अलाउ ज्वाइन कर ली कोई अदर पार्टी, तो ये लॉ इसको अलाउ करता है कि आप मर्ज कर सकते हो। बट बिलो 2/3 मेंबर्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अलाउड यू। सो यहाँ पर एक किहोतो केस है, किहोतो होलोहन केस, ओके, एंड जची हू केस, दैट इज़ इन 1992। ओके, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द स्पीकर डिसीजन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके।
एंड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. इट इज़ अलाउड दैट जुडिशियल रिव्यू सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. यस. नेक्स्ट है कृष्णा सिंह केस. सो इन द कृष्णा सिंह केस, in the Krishna Singh case, there was a issue of the partition of the behavioral part of speaker suggested a permanent tribunal to decide case under the 10th schedule. Okay, so Krishna Meghchandra case, that was the disqualification petition will be decided by the 3 month. Now next is the whip system is there. So anti-defection law put the party member into the bracket of obedience of the party whip. सो रिटन ऑर्डर जो होता है, रिटन ऑर्डर को विप कहा जाता है. इट इज़ ए रिटन ऑर्डर ऑफ द मेंबर टू असर्टेन द डायरेक्शन एंड डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ द पार्टी हु इज़ ऑथराइज टू इशू द डायरेक्शन. ओके, सो देयर इज़ द टर्म ऑफ ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ विपिंग and this whipping is followed by the party line. It is followed by the party line, and this is a written order for the party member about the certain defection, about the certain defections. So this is a written order. Okay. Now next is ordinance making power of the governor. So recently analyzing like issue, the president has dropped 2019 में no ordinance were promulgated. ठीक है ना, ये वाला बाद में करेंगे. अभी ये पेज नंबर 18 से हम आ गए हैं डायरेक्ट पेज नंबर 20 पर. बीच का एक पेज गायब है. ओके, सो ओके, कोई बात नहीं. सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट ने अभी 75 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं. ठीक है. सो द पार्लियामेंट सेक्रेटरीट हैज़ बीन कस्टोडियन ऑफ द प्रोसीजर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ द 2 हाउसेस. पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट होता है वो क्या करता है, वहाँ का प्रोसीजर, वहाँ का प्रेसिडेंट और वहाँ का लेजिस्लेटिव नॉलेज है उनको मेंटेन करता है. ओके, सो आर्टिकल 98 में क्या बताया गया है, एक सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ होगा. तो एक सेक्रेटरियल स्टाफ होगा किसमें, पार्लियामेंट में. ऑल राइट. तो ये सेक्रेटरियल स्टाफ करेगा क्या, सेक्रेटरीट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, पेमेंट और सैलरी देखेगा, सर्विंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को देखेगा, सेक्रेटरी जनरल एड्स एंड एडवाइस प्रेसाइडिंग ऑफिसर को देगा, प्रिपेयर करेगा रिसर्च मटेरियल एंड पब्लिकेशन प्रिपेयर करेगा, रिकॉर्ड्स ऑन द डे टू डे प्रोसीडिंग्स. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्रेटरीट एंड दिस इज़ अंडर द आर्टिकल 98. So it all allow the creation of the post common to both house of parliament. Article 187, that is the makes the similar provision for the secretariat state legislature. Council of the state secretariat and the parliament secretariat were set up in the 1952. Okay, so in 1954 the Rajya Sabha secretariat and the Lok Sabha secretariat दो होते हैं. The secretariat of the both house has been divided into 10 services. Function of the legislature, executive, administrative, verbatim reporting and services. Speaker and the chairman can create new posts for the secretariat, class 1, class 2 and prior consultation with the Union Ministry of the Finance. Secretariat General of the both house hold the rank equivalent to the cabinet secretariat. और इनको rank मिलता है, that is the cabinet secretariat. कैबिनेट सेक्रेटरीट. ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो है कि लोकसभा का सेक्रेटरीट है, राज्यसभा का भी है. ठीक. तो लोकसभा में तो स्पीकर होता है जिसमें अल्टीमेट पावर्स होती है गाइडेंस कंट्रोल करना सेक्रेटरीट को. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, सेक्रेटरीट जनरल. रिक्रूटमेंट कंडीशंस, लोकसभा का सेक्रेटरीट होता है जिसमें रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस रूल्स बनाए गए 1955 में. एंड प्रेसिडेंट इनको प्रोमulgate करता है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द स्पीकर. सिमिलरली राज्यसभा में भी ये पावर्स सेक्रेटरीट की चेयरमैन में होती है, सेक्रेटरीट जनरल भी होता है. और यहाँ पर भी रूल है जो कि 1957 में बनाया गया था, प्रेसिडेंट इनको प्रोमulgate करता है सिमिलर टू द लोकसभा में जैसे हो रहा था. ओके. नेक्स्ट इज़ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया. ओके, सो सी द 30th एनिवर्सरी हुई थी अभी, 30th एनिवर्सरी. ओके, तो ये जो 30th एनिवर्सरी थी 73rd एंड 74 अमेंडमेंट के लिए. इट रेफर टू द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर रिसोर्सेज डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द सेंटर टू द लोकल गवर्नमेंट. दिस इज 73rd एंड 74 अमेंडमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. पंचायती राज पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड consist of the 243 and 243O and 8 the 11th schedule and 29 functions. Similarly, 74 Constitutional Amendment added to the Part 9A and 243B, P and ZG. That was 12 schedule and 18 functions are given. Okay.
तो यहाँ पे एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर हनुमंता राव कमेटी, GVK राव कमेटी, देन LM सिंघवी कमेटी एंड थुंगन कमेटी. ओके, सो सी द ई ग्राम स्वराज एंड द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज की बात की गई. वेब बेस्ड पोर्टल है ई ग्राम स्वराज. पीपल प्लान फॉर द सबकी योजना सबका विकास. बैकवर्ड रीजन को भी ग्रांट्स प्रोवाइड किए गए. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज दैट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. नेशनल पंचायत अवार्ड दैट वाज पंचायत अवार्ड एंड स्वामित्व स्कीम रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द विलेज ओनर्स. सो स्वामित्व स्कीम में क्या है, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं सारे के सारे किसके, विलेज के. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इट इज कम्स अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द पंचायती राज इज द पंचायत. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल कौन सा है, 243H, एंड दिस इज फाइनेंस फॉर द पंचायत फॉर सिक्योरिटी ऑथराइजेशन एंड कंसोलिडेटेड. ये आता कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. अगेन 243I जो है 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है. एंड रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, मेक द रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑल्सो. नाउ अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द B that is mandate the finance commission to recommend the measure needed to augment the consolidated fund of the panchayat and the resources. So there is a consolidated fund of the panchayat. Okay, and that is under the article 280. And next one is tax revenue, property tax, that is building the tax, duty, commodities and tax profession. Non-tax revenue, that was the market free person exporting goods and free registration of the cattle. Transfer fund and the finance commission and the state finance commission दोनों के बीच में एक ट्रांसफ़र फंड है. सो दैट इज़ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द सैनिटेशन एंड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक कंडीशन परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स एंड स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. ठीक है, नाउ अदर सोर्स है ट्रांसफ़र पेमेंट के अलावा मनरेगा and सांसद आदर्श ग्राम योजना and World Bank, these all are working for this. So this is the financial institution of the Panchayati Raj system under article 243H, I and 280 and इंटरनल के अंदर आ जाएंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रिवेन्यू. टैक्स रिवेन्यू में जितनी भी टैक्सेस होते हैं और नॉन टैक्स रिवेन्यू में फ़ी और चार्जेस. ठीक है, ट्रांसफ़र फंड भी होता है. ट्रांसफ़र फंड में यूनाइटेड ट्रांसफ़र फंड हो जाएगा. And okay, now next topic is about